ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਗਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਇਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੋ ਜੋਹਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੋ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਗੱਤਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ करेगा खालसा फतेह 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 जीत है जीत है जीत है जीत है। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ।
टेस्टिंग करेंगे। चेक 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 चालू नहीं हुआ, है। नहीं हुआ। हाथ हो ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। नायक साहब, वैसे तो अभी अंत नहीं, अभी तो मध्यांतर है, अभी तो शुरुआत है, रास्ता बड़ा लंबा है। मुंबई का भी प्रोग्राम और आपने कहा कि और कई प्रोग्राम हो गए, पर फिर भी नांदेड़ के प्रोग्राम का समापन है और बड़ा कामयाब जो इसको इवेंट जो माना गया कि हुआ, एक अच्छा प्रोग्राम हुआ। फिर आज आप खुद समापन के समय में भी मौजूद रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ये तो हमारा एक ऐतिहासिक पल भी रहा है और मुझे लगता है कि एक भावनिक भी पल रहा है कि जो आपको बताया मैं 300 साल बाद इसी भूमि पे 300 साल पहले हमारे पूजनीय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु नानक नाम लेवा संगत सजाई थी। और यही क्षण है कि जो पुत्र के यहाँ से पिताजी के यहाँ पर गुरु साहब गए शहादत केस में, और 300 साल बाद ये गुरु नानक नाम लेवा संगत एक आकर ये शहादत का कार्यक्रम हमने किया। और उसमें हमारे ऐसा एक भावनिक क्षण 2 दिन का रहा है कि ऐसे लगता है कि 9 समाज मिलकर गुरु नानक नाम लेवा संगत तख्त श्री हुजूर साहब के हमारे सभी पंच प्यारे साहिबान और महाराष्ट्र शासन ने इसको सहयोग किया, जिसमें आपने देखा कि हमारे सिख गुरु भाई, सिख लिकर गुरु भाई हो, बंजारा हो, लुबाना हो, मोहियाल हो, सिंधी हो, वाल्मीकि हो, उदासीन और भगत नामदेव संप्रदाय आपने देखा। ऐसा एक ये लगा कि हाँ, तो आपने स्वयं देखा कि गुरु साहब का जो खुद गुरु साहब वहाँ पे विराजमान रहे और जिस प्रकार की संगत वहाँ पे आई, और इतना ये भावनिक भी रहा कि हम ऐसे लगा था कि हमारा गहरा नाता क्या है। और जिस प्रकार का वहाँ पे गुरबानियाँ सुनाई गई संतों द्वारा, हमारे जो महापुरुषों द्वारा वहाँ भी आशीर्वचन भी हुए, गुरबानियाँ, हमारे इतिहास भी पढ़ाया गया। उसी को लगकर ऐसा लगा कि कितना बड़ा हमारा इतिहास रहा है, उसको 300 साल बाद हम एक आने का काम, मुझे लगता है कि तख्त हुजूर साहब से ये ऐतिहासिक कार्य भी हुआ जो पंच प्यारे साहिबान ने ये विषय लिया। और एक बात है कि अभी तो शुरुआत हुई है। आप सभी को मालूम है गुरु गोविंद सिंह साहब ने बोला था कि खालसा पंथ 96 करोड़ का होगा और वो देश पर राज करेगा। तो मुझे लगता है कि इस धार्मिक कट्टरता, इस कार्यक्रम के द्वारा आपने देखा कि हमारी धार्मिक कट्टरता बढ़ी और सामाजिक सलोखा भी बढ़ा। और इसको लेकर हम सब गुरु भाई एक आकर आगे चल के मुझे लगता है कि और इसको आगे चलेगा। मेरा तो सौभाग्य है कि मेरे पुरखे मक्खन शाह लबाना ने गुरु तेग बहादुर जी को खोजने का कार्य किया और उनका इतिहास पहुँचाने का मेरे जैसे लाखों नौजवान मेरे गुरु भाई को ये सौभाग्य रहा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए बोल रहा हूँ कि पहली बार हमारे गुरुओं का ये ऐतिहासिक जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वैभवशाली है और स्वर्णिम इतिहास है, जो कभी सामने लाएगा नहीं। इस कार्यक्रम के द्वारा गुरु नानक नाम लेवा संगत के सामने तो लाया जाए, पर पूरी दुनिया के सामने हमारा इतना महान गुरु का इतना इतिहास जो है, गौरवशाली, वैभवशाली, स्वर्णिम इतिहास, इसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाएगा और वो लाया जा रहा भी है। इसलिए महाराष्ट्र शासन का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ हमारे तख्त हुजूर साहब के पंच प्यारे साहिबान का, गुरु नानक नाम लेवा संगत जी ने आगे बढ़ाया, वो बाबा हरनाम सिंह का बहुत बहुत दिल के गहरे से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है जी। सो बड़ी भावना दे नाल है, भावना दिखती भी है नायक साहब। तकरीबन नहीं तो प्रबंधक जो है, आप प्रबंधक के तौर पे आखिर तक डटे हुए हैं, मतलब एक लास्ट मैन के तौर पे अभी तक महाराज का स्वरूप को आपने सुखासन में विराजमान करा के और अभी तक जो आप डटे हुए हैं, इसमें आपकी भावना दिखती भी है। मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का समापन भी आप बोले सोने हाल के जयकारे से आप ही समाप्ति करें जी। आपने एक बोला कि प्रबंधक करके मैं नहीं हूँ, मैं गुरु घर से जुड़ा हूँ। गुरु घर से जुड़ने वाला हमारा परिवार है, तो यहाँ प्रबंधक करके तो नहीं, मैं भावना से जुड़ा हूँ, दिल और मन से जुड़े हैं। जो हमारे पूर्वज मक्खन शाह लबाना ने इतनी बड़ी गुरु से जोड़ने के बाद जो अरदास करी, उनका बेड़ा पार गुरु साहब ने किया, तो मुझे लगता है कि समाज का ही बेड़ा पार गुरु साहब की इस कार्यक्रम के द्वारा किया जाए। इसलिए सभी मेरे गुरु भाई को मेरा वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।